हेलो बच्चों। तो आज की वीडियो में देखते हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, बट वो जो हाइड्रोलिसिस था वो था मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो मैंने बताया था आपको साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस does not undergo hydrolysis. Okay, in this class we will discuss about the hydrolysis of a salt of strong acid and weak base. Okay, we'll take the word hydrolysis of a salt of strong acid and weak base. Okay, so पहला से हेडिंग लगा दीजिए वहां पे hydrolysis of a salt of strong acid and weak base. Hydrolysis of a salt of strong acid and weak base. Okay, hydrolysis of a salt of strong acid and weak base. Okay, now we'll take the example of copper sulfate. Okay, copper sulfate, CuSO4. Okay, this copper sulfate is a salt of strong acid H2SO4. Copper sulfate is a salt of strong acid H2SO4 and weak base CuOH/2. जो कॉपर सल्फेट है बच्चों, कॉपर सल्फेट इज अ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 and weak base CuOH/2. This is what is strong acid, and this is weak base. So this copper sulfate is a salt of strong acid and weak base. Copper sulfate is a what? Salt of strong acid and weak base. Okay, if this copper sulfate is dissolved in water, that dissociates in water. Okay, जो कॉपर सल्फेट है, जो कॉपर सल्फेट इज अ साल्ट, और जो साल्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। पहले बताया मैंने जो साल्ट होता है दैट साल्ट इज व्हाट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो साल्ट होता है बच्चों क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, एंड दैट साल्ट विल डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू इट्स आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो जो बच्चों जो कॉपर सल्फेट है, दैट कॉपर सल्फेट विल डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू इट्स आयंस एंड गिव्स व्हाट? Cu2 positive plus SO4 2 negative. Okay, Cu2 positive plus SO4 2 negative. अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो कॉपर है Cu2 पॉजिटिव वो वीक है, Cu2 पॉजिटिव इज वीक एंड SO4 2 नेगेटिव इज स्ट्रॉन्ग। ओके, तो जो SO4 2 नेगेटिव है उसकी टेंडेंसी नहीं है वाटर के साथ रिएक्ट होने की। That SO4 2 negative have no tendency to react with water because the possible product is what? H2SO4. ओके, क्योंकि SO4 2 नेगेटिव वाटर के कौन सा आयन के साथ रिएक्ट होगा? H प्लस के साथ। ओके, जो SO4 2 नेगेटिव आयन है वो SO4 2 नेगेटिव आयन will react with H plus ions of water. SO4 2 negative ion will react with H plus ions of water and gives what? H2SO4. And this is what is again strong electrolyte. That strong electrolyte again dissociate into its ions, completely dissociate into its ions. That means that SO4 2 negative have no tendency to react with water. ठीक है, so कौन react होगा? Cu2 positive. Then Cu2 positive aqueous will react with what? Ions of water. Okay, यहाँ पे Cu2 positive है इसलिए हम लोग क्या ले रहे हैं? 2 वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं। ओके, वीक है इसलिए क्या कर रहे हैं हम लोग? रिवर्सिबल रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो Cu2 पॉजिटिव अभी बताया मैंने, जो कॉपर सल्फेट है CuSO4 इज अ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 एंड वीक बेस CuOH/2. ओके, दिस कॉपर सल्फेट क्या देख रहे हैं हम लोग? हाइड्रोलिसिस ऑफ अ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. This copper sulfate is a salt of strong acid H2SO4 and weak base CuOH/2. Then copper sulfate is a salt and that salt will dissociate completely into its ions as Cu2 positive and SO4 2 negative. मैंने आपको एक लिस्ट बना के दिया था, Na positive, K positive, Cl negative, Br negative, I negative, SO4 2 negative, NO3 negative will not react with water.
Okay, so SO4 2 negative will not react with water, or SO4 2 negative have no tendency to react with water, because the possible product is H2SO4 which is a strong electrolyte. Because the possible product क्या होता है, H2SO4 है, वो क्या होता है, strong electrolyte होगा, वो फिर से dissociate हो जाएगा. ठीक है, इसलिए कौन रिएक्ट हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव आयंस will react with water. यहाँ पे दो पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दो वाटर मॉलिक्यूल ले रहे हैं. सो Cu2 पॉजिटिव आयन वाटर के कौन से आयन के साथ रिएक्ट होगा, OH नेगेटिव के साथ, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव. तो क्या बनाएगा, Cu2 positive ion will react with OH negative ion of water and will create unionized CuOH by 2. Unionized CuOH by 2. अब कितने बचे, यहाँ पे देखो दो H प्लस है, HOH होगा, H प्लस OH माइनस. तो किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, Cu2 positive will react with OH minus of water and will give CuOH by 2 plus it will create what, twice H plus. क्या क्रिएट करेगा, twice H plus क्रिएट करेगा. ठीक है, दैट मींस इस साल्ट का कौन रिएक्ट हो रहा है, इस साल्ट का कैटायन रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, वाटर के साथ, एंड क्रिएट क्या क्रिएट कर रहा है, एक्सेस ऑफ H plus आयंस क्रिएट कर रहा है. Cation will react with water, okay, to give excess of H plus ions and the solution become acidic. Hence the salt of strong acid and strong acid and weak base is acidic in nature. कौन से nature का होता है, acidic in nature. That means the salt of strong acid and weak base are acidic in nature. देखो salt of strong acid, strong base does not undergo hydrolysis. No hydrolysis. No hydrolysis. Salt of strong acid and weak base, इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है क्या, यस, क्योंकि कैटायन रिएक्ट हो रहा है. कैटायन will react with ions of water, gives unionized CuOH by 2 and will create excess of H plus ions, and because of this excess of H plus ions the solution will be acidic. That means salt of strong acid and weak base are acidic in nature. Acidic in nature क्या होता है, salt of strong acid and weak base are acidic in nature. अब देखो यहाँ पे जो साल्ट है, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस कौन से नेचर का है, एसिडिक. मतलब जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट रहता है वो नेचर का रहेगा, जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट रहेगा उस नेचर का रहेगा. ठीक है, दैट मींस साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक इन नेचर. कौन से नेचर का रहेगा, एसिडिक इन नेचर. ओके, सो दिस इज व्हाट योर reaction. The Cu2 positive ion will react with ions of water, gives unionized CuOH by 2 and will create excess of H plus ions, and because of this excess of H plus ions the solution of salt of strong acid and weak base will become acidic in nature. क्या बनेगा, acidic in nature and will convert blue litmus into red. क्या करेगा, blue litmus को red litmus में क्या करेगा, convert करेगा. Okay, so this is what your salt of strong acid and weak base. Okay, now let's see about hydrolysis of the salt of weak acid and strong base. ओके, उसके पहले एक क्वेश्चन है, aqueous solution of FeCl3 become turbid. ओके, एक क्वेश्चन है उसके पहले, aqueous solution of FeCl3 become turbid. Why? ओके, टर्बिडिटी क्रिएट होगी, क्लाउडीनेस क्रिएट होगा, वो किसकी वजह से होगा, बिकॉज ऑफ दैट अनआयोनाइज्ड आयंस की वजह से. किसकी वजह से होगा, अनआयोनाइज्ड आयंस की वजह से क्या होता है, टर्बिडिटी क्रिएट होता है. ठीक है, तो देखो बच्चों क्या आ रहा है इसमें, दिस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ FeCl3. अब FeCl3 की बात किया जाए, FeCl3, this FeCl3 is a salt of strong acid HCl. सिंपल सी बात है, क्लोरीन है यहाँ पे तो HCl रहेगा ही. स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस FeOH by 3. एंड वीक बेस क्या है, FeOH by 3. वीक बेस कौन सा, FeOH by 3.
जो FeCl3 है, FeCl3 is a salt of strong acid HCl and weak base FeOH by 3. अब जो FeCl3 है ये तो साल्ट है बच्चों, FeCl3 क्या है, साल्ट है। तो साल्ट का जो डिसोसिएशन होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। साल्ट का डिसोसिएशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। सो दिस FeCl3 will get dissociated completely. FeCl3 will dissociated completely as aqueous Fe3 positive plus thrice Cl negative, Fe3 positive plus thrice Cl negative। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो क्लोरीन है Cl ये स्ट्रॉन्ग है, ओके क्योंकि देखो ये अगर H प्लस के साथ रिएक्ट किया तो HCl बनाएगा and HCl is a strong electrolyte, so this Cl negative have no tendency to react with water। जो Cl negative है बच्चों वो Cl negative की H प्लस आयन के साथ या फिर वाटर के जो H प्लस आयन है उसके साथ रिएक्ट होने की टेंडेंसी नहीं है। दैट मींस Cl negative ions have no tendency to react with water because the possible product is HCl। अगर वो Cl negative वाटर के साथ रिएक्ट हो गया तो वाटर के कौन से आयन के साथ रिएक्ट होगा, H प्लस के साथ। तो जो H प्लस के साथ रिएक्ट होने के बाद प्रोडक्ट क्या मिलेगा, पॉसिबल प्रोडक्ट HCl, which is what your strong electrolyte। That means Cl negative has no tendency to react with water because the possible product is HCl, which is strong electrolyte। क्या है बच्चों, strong electrolyte। ठीक है, तो कौन रिएक्ट होगा, Fe3 positive। So Fe3 positive will react with water। अब यहाँ पे 3 पॉजिटिव है तो 3 वाटर ले लेंगे हम लोग। will react with water, रिवर्सिबल रिएक्शन है क्योंकि वीक है, ओके वीक बनाएगा। so जो Fe3 पॉजिटिव है it will react with वाटर, कौन से वाटर के कौन से आयन के साथ रिएक्ट होगा, OH माइनस के साथ, और क्या बनाएगा FeOH by 3। देखो FeOH by 3 प्लस क्या क्रिएट करेगा, थ्राइस H प्लस, क्या बनाएगा, थ्राइस H प्लस बनाएगा। ठीक है, थ्राइस H प्लस बनाएगा। ओके दैट मींस दिस सॉल्यूशन इज आल्सो अगेन एसिडिक। ओके अब देखो ये जो FeOH by 3 है वो FeOH by 3 क्या है, अनडिसोशिएटेड है। वो क्या है, अनडिसोशिएटेड है, और वो सॉल्यूशन में क्या रहेगा, वैसे क्या वैसा ही रहेगा। सो दिस ड्यू टू formation of what, undissociated, or you can say that undissolved FeOH by 3, the solution become what, turbid। ये जो FeCl3 का सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, टर्बिड हो जाएगा। क्योंकि देखो ना सॉल्यूशन में जो FeOH by 3 है वो तो अनडिसॉल्व रहेगा, वो तो वैसे का वैसे ही दिखेगा, क्लाउडीनेस क्रिएट होगा या फिर टर्बिडिटी क्रिएट होगा। सो दैट्स व्हाई द सॉल्यूशन ऑफ FeCl3 बिकम टर्बिड। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द अनडिसॉल्व FeOH by 3, बिकॉज ऑफ द व्हाट, अनडिसॉल्व FeOH by 3। सो ये एक सवाल हो गया आपका एक्स्ट्रा का सवाल। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पैरिंगली सोल्यूबल FeOH by 3। स्पैरिंगली सोल्यूबल का मतलब होता है बहुत कम सोल्यूबल होता है। ओके क्या होता है स्पैरिंगली सोल्यूबल का मीनिंग क्या होता है, बहुत कम सोल्यूबल होता है। ओके सो ड्यू टू द व्हाट, प्रेजेंस ऑफ स्पैरिंगली सोल्यूबल FeOH by 3, the solution of aqueous FeCl3 become turbid। okay so this is the one more question। so next अभी देखते हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ द साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एक हेडिंग लगा दीजिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ द साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ weak acid and strong base। हाइड्रोलिसिस ऑफ अ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। आप लोग देख सकते हो वहां पे मैंने बहुत सारे ऐसे साल्ट लिए, 4 प्रकार के जब साल्ट लिए थे हम लोगों ने, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, साल्ट ऑफ वीक एसिड salt of strong acid weak base, salt of weak acid strong base, salt of weak acid weak base। एक बहुत सारे एग्जांपल्स लिए वहां पे, you can check the example CH3 COONA सोडियम एसिटेट। क्या है ये बच्चों, सोडियम एसिटेट। so CH3 COONA is a salt of weak acid CH3 COOH and strong base NaOH। देखो जो CH3 COOH है वो क्या है बच्चों, वीक एसिड है, और जो NaOH है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस।
Okay, so this sodium acetate CH3COONA is a salt of weak acid CH3COOH and weak acid CH3COOH and strong base NOH. अब डेफिनेटली जो सोडियम एसिडेट है इज अ साल्ट. ओके, जो सोडियम एसिडेट है वो क्या है बच्चों, साल्ट है. तो साल्ट का जो डिसोसिएशन होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है. सो दिस CH3COONA will dissociate completely into its ions. Okay, so कौन से आयंस मिलेंगे उसके, CH3COO नेगेटिव एक्वस प्लस Na पॉजिटिव एक्वस. अब देखो इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है, Na पॉजिटिव, क्योंकि वो क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा. ओके, Na पॉजिटिव वाटर के कौन से आयन के साथ रिएक्ट होगा, OH माइनस के साथ, और क्या बनाएगा, NaOH. और NaOH क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. ओके, दैट मींस Na पॉजिटिव हैव नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर. ओके, Na positive have no tendency to react with water because the possible product is NaOH. Okay, Na positive have no tendency to react with water because the possible product is NaOH, which is what your strong electrolyte. तो कौन react होगा, CH3COO negative. कौन react होगा, CH3COO negative will react with water. मतलब यहाँ पे कौन रिएक्ट हो रहा है, कैटायन के एनायन. एक चीज याद रखना, अगर कैटायन वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो सॉल्यूशन एसिडिक बनाता है. कैटायन अगर रिएक्ट होता है वाटर के साथ तो सॉल्यूशन एसिडिक बनाता है. अगर एनायन रिएक्ट होता है वाटर के साथ तो सॉल्यूशन बेसिक बनाता है. देखो CH3COO नेगेटिव will react with H2O. So CH3COO नेगेटिव वाटर के कौन से आयन के साथ रिएक्ट होगा, H प्लस के साथ, और क्या बनाएगा, CH3COOH एक्वस प्लस क्या होगा, OH माइनस. ओके, so CH3COO negative will react with H plus ions of the water and gives undissociated CH3COOH and OH minus. And because of this excess of OH minus ions produced in the solution, the salt of weak acid and strong base will become basic in nature. देखो ना, इस solution में क्या create हो रहा है, excess of OH minus create हो रहा है. And because of this excess of OH minus ions, the solution of a salt of weak acid and strong base become basic in nature and convert red litmus into blue. क्या करता है वो, and convert what, red litmus into blue. red litmus को क्या बनाएगा वो, blue बनाएगा. ओके, सो सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. जो स्ट्रॉन्ग होता है वो रिएक्ट नहीं होगा, जो वीक है वो रिएक्ट होकर क्या बनाएगा, अनडिसोसिएटेड पार्टिकल या फिर H प्लस या फिर OH माइनस. H प्लस अगर बनाया तो सॉल्यूशन बनेगा एसिडिक, और OH माइनस बनाया तो सॉल्यूशन बनेगा बेसिक. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस एक्सेस ऑफ OH माइनस आयन प्रोड्यूस इन द सॉल्यूशन ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस विल बिकम बेसिक इन नेचर. ठीक है, ठीक है. तक चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग. एक सवाल है बच्चों, why an aqueous solution of NH4Cl is acidic while that of HCOOK is basic. बनाते हैं हम लोग उस सवाल को. Why an aqueous solution of NH4Cl? एक सवाल है, why an aqueous solution of NH4Cl is acidic. अब डेफिनेटली एसिडिक ही होगा क्योंकि यहाँ पे Cl है, स्ट्रॉन्ग है. तो एसिडिक इन नेचर while it's acidic while that of HCOOK is basic. ओके, अब देखो यहाँ पे दो सॉल्यूशन दिए, हम दोनों को सॉल्व करना है. There are two solutions.
देयर आर टू सॉल्यूशन, एक है why an aqueous solution of NH4Cl is acidic while that of HCOOK is basic. This is ammonium chloride, this is potassium formate. क्या ये potassium formate, okay? So that is what your potassium formate. अब देखो बच्चों, पहले लेते हैं हम लोग NH4Cl को. NH4Cl, NH4Cl is a salt of weak acid NH4OH and weak base, NH4Cl is a salt of weak base NH4OH and strong acid HCl. strong acid HCl, ये क्या है बच्चों? weak base NH4OH is a weak base और HCl is a strong acid. HCl क्या है बच्चों? strong acid. What is HCl? HCl क्या है? strong acid. So देखो, this NH4Cl is a salt of weak base NH4OH and strong acid HCl, या फिर NH4Cl is a salt of strong acid HCl and weak base NH4OH. तो जो बच्चों NH4Cl है वो तो साल्ट है. NH4Cl क्या है? साल्ट है. That NH4Cl will dissociate completely into its ions. तो जो NH4Cl है उसका जो डिसोसिएशन होता है बच्चों वो क्या होता है? कंप्लीट होता है. This NH4Cl aqueous will dissociate completely into its ions और क्या बनाएगा? NH4 positive aqueous plus Cl negative aqueous. क्या बनाएगा? NH4Cl जो है वो क्या है? साल्ट है और क्या बनाएगा? NH4 पॉजिटिव aqueous बनाएगा और क्या बनाएगा? Cl नेगेटिव aqueous बनाएगा. अब सिंपल सी चीज है, यहाँ पे जो Cl नेगेटिव है वो वाटर के कौन सा आयन के साथ रिएक्ट होगा? H प्लस के साथ क्या बनाएगा? HCl, which is the strong electrolyte. क्या होता है? Strong electrolyte. That means Cl negative ion have no tendency to react with water. Cl negative ion have no tendency to react with water because the possible product is HCl, which is strong electrolyte. Cl negative ion have no tendency to react with water because the possible product is HCl. क्योंकि Cl negative water के कौन सा आयन के साथ रिएक्ट होगा? H plus के साथ और बनाएगा HCl, which is the strong electrolyte. So कौन रिएक्ट होगा? NH4 ion, देखो कैटायन है, will react with water और क्या बनाएगा? जब NH4 पॉजिटिव है वाटर के कौन से आयन के साथ रिएक्ट होगा? OH माइनस के साथ. क्या बनाएगा? NH4OH प्लस क्या बनाएगा? H प्लस क्या बनाएगा? H प्लस. Okay, so NH4 positive ion of salt will react with OH minus ion of water and gives NH4OH and excess of H plus ions. And because of the presence of this excess of H plus ions, the solution of salt of NH4Cl is acidic in nature. देखो, because of the excess of H plus ions produced in the solution of NH4Cl is acidic in nature. क्या बनाएगा वो? acidic in nature रहेगा. किसका साल्ट का सॉल्यूशन? NH4Cl के साल्ट का सॉल्यूशन क्या बनेगा? acidic in nature. अब अगर देखा जाए on the other hand देखो HCOOK. अब जो HCOOK है पोटेशियम फॉर्मेट, दिस इज द साल्ट ऑफ वीक एसिड HCOOH. फॉर्मिक एसिड है ये, फॉर्मिक एसिड. दिस इज व्हाट योर वीक एसिड एंड KOH वो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है. KOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है. मैंने लिख के दिया था आपको कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा बेस. ठीक है, देखो दिस पोटेशियम फॉर्मेट HCOOK इज अ साल्ट ऑफ वीक एसिड HCOOH एंड स्ट्रॉन्ग बेस KOH. ओके, चलो आई थिंक लाइट गया थोड़ा तो दिख रहा है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. This HCOOK is a salt of weak acid. कौन सा weak acid? HCOOH and strong base KOH. अगर देखा जाए HCOOK is a salt, so it will dissociate completely into its ions और क्या बनाएगा? HCOO negative formate ion plus K positive aqueous potassium ion. क्या बनाएगा? एक फॉर्मेट आयन बनाएगा HCOO नेगेटिव फॉर्मेट आयन और K प्लस मतलब पोटेशियम आयन. अब देखो K प्लस जो है वो K प्लस किसके साथ रिएक्ट होगा?
वाटर के OH माइनस के साथ और क्या बनाएगा KOH which is strong electrolyte. क्या है वो strong electrolyte. That means this K plus does not have tendency, that K plus ion have no tendency to react with water, to react with what ions of water, because the possible product is KOH. अगर ये रिएक्ट भी कर लिया तो क्या बनाएगा KOH बनाएगा which is what your strong electrolyte. So कौन रिएक्ट होगा HCOO negative. HCOO negative aqueous will react with ions of water. कौन से आयन के साथ H plus OH minus किसके साथ रिएक्ट करेगा H plus के साथ क्या बनाएगा HCOOH वीक एसिड फॉर्मिक एसिड प्लस क्या बनाएगा OH माइनस प्लस क्या बनाएगा OH माइनस. ओके देखो जो HCOO नेगेटिव है वो वाटर के H प्लस के साथ आयन के साथ रिएक्ट होगा और क्या बनाएगा HCOOH. ओके दैट स्लाइटली सोलुबल और स्लाइटली डिसोशिएटेड फॉर्मिक एसिड बनाएगा क्योंकि फॉर्मिक एसिड वीक एसिड है स्लाइटली डिसोशिएट होगा and will create hydroxyl ion. Okay, OH minus ion. So because of this excess of OH minus ion the solution become basic in nature. So that's why solution of HCOOK is basic in nature. Okay, so इसी की वजह से क्या होता है जो solution है HCOOK will become basic in nature. वो क्या बनाएगा basic nature का solution बनाएगा. ठीक है ओके एक और सवाल है सेम सवाल है बच्चों यू कैन टेक दैट क्वेश्चन आल्सो. ओके सो क्या बनाएगा देखो एक सवाल है aqueous solution of sodium carbonate is alkaline whereas aqueous solution of ammonium chloride is acidic. Aqueous solution of sodium carbonate sodium carbonate is alkaline whereas aqueous solution of ammonium chloride is acidic. Explain. ओके सो देखो यहाँ पे भी दो एग्जांपल है एक सोडियम कार्बोनेट का और दूसरा है अमोनियम क्लोराइड का. अब बच्चों देखिए यहाँ पे फॉर्मूला नहीं दिया है आप लोगों को अमोनियम क्लोराइड का और सोडियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो नहीं दिया तो हम लोगों को बनाना पड़ेगा उसको. अब सोडियम है यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बनाएंगे सोडियम क्या होता है Na कार्बोनेट क्या होता है CO3 सोडियम का वैलेंसी क्या है 1 कार्बोनेट का वैलेंसी क्या है 2 क्या बनाएगा फॉर्मूला Na2CO3. So this is the formula for sodium carbonate. Okay, Na2CO3 will be the formula for sodium carbonate. Okay. तो पहले हम लोग सोडियम कार्बोनेट के बारे में देखते हैं बाद में फिर अमोनियम क्लोराइड के बारे में देखेंगे. ओके सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है Na2CO3. This is what your sodium carbonate. ठीक है. अब बच्चों देखो जो सोडियम कार्बोनेट है that is the salt. This Na2CO3 is a salt of what? Weak acid H2CO3 क्योंकि कार्बोनेट है सोडियम है H2CO3 weak acid H2CO3. Okay, and strong base NaOH. And what strong base NaOH? ये weak acid है H2CO3 देखो कार्बोनेट है पर हमारे लिस्ट पे कार्बोनेट नहीं था. कौन था Cl नेगेटिव था Br नेगेटिव I नेगेटिव SO4 2 नेगेटिव NO3 नेगेटिव.
ओके CO3 नहीं था हमारे लिस्ट में, हाँ बेस के लिस्ट में सोडियम था, पोटेशियम था. So this is what your Na2CO3 is a salt of weak acid H2CO3 and strong base NaOH. Strong base NaOH. And your what? Strong base NaOH. अब देखो अगर Na2CO3 तो साल्ट है, Na2CO3 साल्ट है, वो क्या हो जाएगा? कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा. किसमें? Na पॉजिटिव, ट्वाइस Na पॉजिटिव aqueous plus CO3 2 negative aqueous. Okay, जो Na2CO3 है, Na2CO3 is a salt and that will is what? Strong electrolyte. Salt जो होता है वो क्या होता है? Strong electrolyte होता है and that will dissociate completely into its ions Na2 positive, sorry Na positive, not Na2 positive, Na positive and CO3 2 negative. ठीक है, अब देखो क्या होता है. अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सोडियम क्या होता है? सोडियम Na पॉजिटिव किसके साथ रिएक्ट होगा? वाटर के कौन से आयन के साथ? OH माइनस के साथ, और क्या बनाएगा? NaOH बनाएगा. क्या बनाएगा? NaOH, which is strong electrolyte. So Na positive don't have, or Na positive have no tendency to react with water. Na positive have no tendency to react with water. तो कौन रिएक्ट होगा? CO3 2 negative. CO3 2 negative will react with water. अब 2 नेगेटिव है तो 2 वाटर लेना पड़ेगा. ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन बिकॉज वीक बनाएगा ट्वाइस H2. ठीक है, अब CO3 2 नेगेटिव किसके साथ रिएक्ट होगा? H प्लस के साथ. कितने H प्लस? 2 H प्लस, और क्या बनाएगा? H2CO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3. तो CO3 2 नेगेटिव है, किसके साथ रिएक्ट हो गया? वाटर के H प्लस के साथ, और क्या बनाएगा? H2CO3, और क्या रहेगा? ट्वाइस OH नेगेटिव. क्या रहेगा? ट्वाइस OH नेगेटिव. ओके, सो दैट मींस लिसन, जो Na2CO3 है इज अ साल्ट ऑफ वीक एसिड H2CO3 एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH. ठीक है, तो Na2CO3 इज अ साल्ट, उसका डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? कंप्लीट, और क्या बनाएगा? ट्वाइस Na पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव. अब जो Na पॉजिटिव आयन है हैव नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर. That Na2 positive ion have no tendency to react with water because the possible product is NaOH, which is strong electrolyte. So CO3 2 negative ion will react with water molecule. So जो CO3 2 negative है वो water के कौन से ion के साथ react होगा? H plus के साथ, और बनाएगा H2CO3 and twice OH negative. So because of the excess of OH negative ion produced, the solution of sodium carbonate, okay, solution of sodium carbonate is alkaline in nature. देखो, सोडियम कार्बोनेट इज अल्कलाइन इन नेचर. ओके, अल्कलाइन मतलब बेसिक ही बोलेंगे हम लोग, अल्कलाइन इन नेचर. ओके, सो अब दूसरा जो है सोडियम अमोनियम क्लोराइड. तो अमोनियम मतलब NH4, क्लोराइड मतलब Cl. अमोनियम का वैलेंसी 1, क्लोराइड का वैलेंसी 1, क्या बनेगा फॉर्मूला? NH4Cl. NH4 एक है, क्लोरीन एक है, बनाएगा NH4Cl. ठीक है, सो NH4Cl. तो जो NH4Cl है बच्चों, that NH4Cl is a salt of strong acid HCl and weak base NH4OH. NH4Cl is a salt of what? Weak acid HCl, sorry, strong acid HCl and weak base NH4OH. इसके बारे में हो चुका है. This is what your strong acid and this is what your weak base. क्या ये? weak base. Okay, so जो NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl is a salt of strong acid HCl and weak base NH4OH. अब जो NH4Cl है वो तो बच्चों साल्ट है, that is strong electrolyte that will dissociate completely into its ions and gives NH4 positive and Cl negative. And what? Cl negative. अब बात की जाए तो Cl negative, जो Cl negative है किसके साथ रिएक्ट होगा? वाटर के H प्लस के साथ, और क्या बनाएगा? HCl, और HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट मींस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. सो दैट मींस Cl नेगेटिव आयन हैव नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर. Cl नेगेटिव आयन हैव नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर. ओके, बिकॉज़ द पॉसिबल प्रोडक्ट इज HCl, व्हिच इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. Cl negative ion have no tendency to react with water because the possible product is HCl, which is a strong electrolyte. तो कौन react होगा? NH4 positive. NH4 positive will react with water. एक positive मतलब एक ही water molecule लेंगे हम लोग.
ओके, सो द NH4 पॉजिटिव आयन विल रिएक्ट विद वाटर, वाटर के कौन से आयन के साथ रिएक्ट होगा, OH माइनस के साथ. So NH4 positive ion of the salt will react with OH minus ion of water and gives undissociated NH4OH and will create excess of H plus ions. And will create excess of H plus ions, and because of this excess of H plus ions produced in the solution of ammonium chloride is acidic in nature. मतलब ये क्या रहेगा, acidic nature का रहेगा. Because of this excess of H plus ions produced in the solution of NH4Cl ammonium chloride is acidic in nature. और because of, अब यहाँ पे क्या होगा, because of the excess of OH minus ions produced in the solution of sodium carbonate, aqueous solution of sodium carbonate is alkaline in nature. कौन सा रहेगा, alkaline in nature. ठीक है, सो आज के क्लास में हम लोगों ने दो क्या पढ़े, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, साल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. ओके, और कुछ सवाल दिए इसके ऊपर के. सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं साल्ट ऑफ weak acid and weak base, salt of weak acid and weak base. Okay.